Good morning, students. Today we are starting with the chapter 6, which is formatting a document. In the formatting a document, we will be covering different topics. The first topic which we are covering is the character formatting. सबसे पहले हम character formatting कर रहे हैं. Character formatting, as its name suggests, character formatting focuses on the appearance of individual characters. Font is a set of characters of specific size and style. From font size to font style, text positioning, text attributes. The character formatting includes all the attributes that can be used to define the arrangement of a character. For example, to open the font dialog box, how do we open the font dialog box? We have to go to the home tab, which we already have opened. Inside the home tab, there is a tab called font. As you can see in the home tab, there is a group called font. You can click on this launcher and dialog box launcher. You will get this dialog box in front of you, where you can change the font, where you can change the size, where you can change the style, size, color, underline style, and different effects you can give. For example, I want to change it to Arial black, I want to make it bold, I want to change the size, I want to make it of this color. Let's make it green. I want to make it underlined. You can change the color of the underline also, right? It has changed the formatting. This dialog box which I opened can be opened through Control plus D also. Shortcut keys to open the dialog box: Control plus D. See, this is what I'm writing. Control plus D is a shortcut key to open the font dialog box, right? Now some common text formatting features I'll just tell you, which you can see in the font group also. From here I can change the formatting, I can change the size. See, I can make it, see, I've selected this line. I can increase the size, I can decrease the size of font size. Okay, I can make it bold, italic, underline. I can give this effect strike through text. ऐसे दिखेगा जैसे एक बार काटा हुआ है. I can make the text look like this. जैसे मुझे लिखना है H2O, I want to write H2O, तो 2H के बेस में आना चाहिए. I'm writing the water, H2O. तो उसके लिए मुझे इसको बेस में लाने के लिए I have to click on this, which means subscript. हमें थोड़ा सा छोटा लिखना है 2 को, राइट? और अगर हमें पावर लिखनी है, अगर मुझे लिखना है x स्क्वायर, ये मैंने x लिख दिया, ये 2 उसकी पावर बनानी है मुझे. I have to select this 2 and click on this superscript to make it shift little upward. Okay, ये स्क्वायर बन गया. लाइक दिस आई कैन डू द चेंजेस इन इट. आप यहाँ से, दिस इज इम्पॉर्टेंट, आप यहाँ से क्या कर सकते हो, आप यहाँ से अपने केस चेंज कर सकते हो. ये मैंने जो भी केस लिखा है मैंने ये सेलेक्ट कर लिया एंड आई क्लिक्ड हेयर टू चेंज द केस. अपर केस सारे कैपिटल लेटर्स में कन्वर्ट हो गए. मैंने वापस इस पे सेलेक्ट किया, आई सेलेक्टेड लोअर केस, एवरीथिंग हैज बीन कन्वर्टेड टू स्मॉल लेटर नाउ. कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, दिस इज फॉर स्मॉल लेटर्स, दिस इज फॉर कैपिटल लेटर्स, एंड दिस इज कैपिटलाइज ईच वर्ड. हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल हो जाएगा. सी, ये L कैपिटल हो गया, ये S कैपिटल हो गया, ये F कैपिटल हो गया, ये L कैपिटल हो गया, ये C कैपिटल है. सी, आई एम चेंजिंग इट अगेन नाउ. आई एम मेकिंग इट लोअर केस. ये वापस सारे लोअर में आ गए.
ये सारे अपर में आ गए, ये कैपिटलाइज ईच वर्ड हो गया। आई हैव क्लियर्ड 3 ऑफ देम। फोर्थ इज सेंटेंस केस। हर एक सेंटेंस का फर्स्ट लेटर कैपिटल। सी सिर्फ एल कैपिटल है, एस भी स्मॉल है, एफ भी स्मॉल है। एक सेंटेंस में सिर्फ फर्स्ट लेटर कैपिटल, अदर्स ऑल स्मॉल। नेक्स्ट है टॉगल केस। टॉगल केस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। ये छोटे को बड़ा कर देता है, बड़े को छोटा। लोअर केस को स्मॉल कर देता है, स्मॉल केस को लोअर केस को अपर कर देता है, अपर केस को लोअर कर देता है। छोटे को बड़ा और बड़े को छोटा। अगर हमने सारे स्मॉल लेटर्स लिए हुए थे तो टॉगल क्या करेगा, अपर कर देगा। अगर हमें ये सारे अपर हैं, अब टॉगल क्या करेगा, सारे स्मॉल कर देगा। टॉगल इंटरेस्टिंग कब बनता है, जब मैंने ले लिया कैपिटलाइज ईच वर्ड। हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल है। अब मैंने टॉगल ले लिया, उल्टा हो गया, हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर स्मॉल हो गया, बाकी बड़े हो गए। सी फॉर्मेटिंग का एफ, डॉक्यूमेंट का डी, क्योंकि हमने पहले कैपिटलाइज ईच वर्ड किया था और जिसमें एफ बड़ा हो गया, डी बड़ा हो गया, और फिर मैंने क्या कर दिया, टॉगल कर दिया, रिवर्ट कर दिया, छोटे को बड़ा और बड़े को छोटा कर दिया। आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर टिल नाउ। देन आई हैव अ फॉर्मेट पेंटर। सी मुझे नहीं याद मैंने इस पर कौन सा कलर चूज़ किया था, मैंने अंडरलाइनिंग में कौन सा कलर चूज़ किया था, बट सेम फॉर्मेटिंग जो मैंने यहाँ की थी वही मुझे यहाँ पर भी करनी है। ये एक लाइन रह गई। मैं इस फॉर्मेटिंग को सेलेक्ट करूँगी, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करूँगी एंड आई अप्लाई दिस फॉर्मेटिंग ऑन दिस। आई जस्ट डू इट वंस अगेन फॉर यू। ये था हमारा, मुझे ये वाली फॉर्मेटिंग कॉपी करनी है, टेक्स्ट नहीं, मुझे फॉर्मेटिंग कॉपी करनी है। जिस स्टाइल में ये टेक्स्ट लिखा हुआ है वो स्टाइल कॉपी करना है। तो मैं यहाँ पर होम टैब में क्लिपबोर्ड ग्रुप के अंदर फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करूँगी। द फॉर्मेटिंग हैज़ बीन कॉपीड, और उसको मैं यहाँ अप्लाई कर दूँगी, इस लाइन पर अप्लाई कर दूँगी। सिर्फ फॉर्मेटिंग अप्लाई हुई है एंड इट कैन बी अप्लाइड वंस। अब सपोज मुझे वापस कहीं और अप्लाई करनी है तो मुझे क्या करना है, आई हैव टू अगेन सेलेक्ट, अगेन आई हैव टू क्लिक ऑन फॉर्मेट पेंटर, उसको वापस हम कहीं अप्लाई कर सकते हैं। दिस वी हैव टू डू इट ईच टाइम वी वांट टू अप्लाई द फॉर्मेटिंग। This is what is the use of format painter. This was all about character formatting. Now we will start with the paragraph formatting. Let's delete this. Now I'm starting with paragraph formatting. Now, what is paragraph formatting? Paragraph formatting is a most important factor in overall appearance of a document. आपके पूरे डॉक्यूमेंट को अट्रैक्टिव बनाने के लिए पैराग्राफ फॉर्मेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, बिकॉज इट कंटेन्स, इसके अंदर क्या आता है, टेक्स्ट अलाइनमेंट, पैराग्राफ इंडेंटेशन, लाइन स्पेसिंग, पैराग्राफ स्पेसिंग, अप्लाइंग बॉर्डर्स एंड शेडिंग्स, these all things comes under paragraph formatting. और पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में सबसे पहले हम सीखेंगे इंडेंटेशन, पैराग्राफ को इंडेंट करना। I just want to see the ruler. मैंने ये रूलर खोल लिया। I want to show this ruler to you. Now let's see what we can do in the paragraph formatting. पहले हमने पैराग्राफ लिख लिया जिसको हमने फॉर्मेट करना है। यहाँ पे मैंने पैराग्राफ लिख लिया जिसको मुझे फॉर्मेट करना है। So you must, जब भी आप जंक लिखो, you must give space in between.